Rahim plans to drive from station A to station C. As I already made the diagram. Diagram मैंने आपके लिए बना दिया है पहले, so that is not going to waste your time. With a speed of 70 km/h, तो ये 70 km/h से यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है टू कैच द ट्रेन अराइविंग देयर फ्रॉम बी. बी से एक ट्रेन है जो आ रही है और ये सी पे आ रही है. इसमें he must reach C at least 15 minutes before the arrival of the train. Means whenever the B reaches the C, make sure that A reaches 15 minutes before that particular train. So let's read further. The train B leaves B, located 500 kilometers south of A, as I already described over there. It is 5 kilometers south of A at 8 o'clock. So 8 o'clock it started with the speed of 50 km/h. It is known that C is located between west and northwest of B. So west is in this direction, north is in this direction. So C is in the west and northwest of what? B. And obviously it is south and southwest of C. So that is also given to you. Angles are also described that C is located between west and northwest of B with BC at 60 degree, while also C is located between south and southwest of A with AC 30 degree to AB. The latest time by which Rahim must leave A को पे रहीम को कितने बजे लीव कर देना चाहिए ताकि वो C पे पहुंच जाए, और 15 मिनट बिफोर it should reach of what? B. So the problem is that speed is given to us. A and B का speed हमको दे दिया है. So what we need to find out? We need to find out these are the distances. ये distances हमको अगर पता चले जाए तो हम easily इसको find out कर सकते हैं, क्योंकि time का formula अगर हम कहें कि what is time actually? So time is what? Time is distance upon speed. As distance हमको पता चले जाए, क्योंकि speed हमको सबका पता है, so we can easily find out the values. Okay. Why this 30, 60 and 90 is given to you? 90 is, why 90 is there? Because that was 30 and that was 60. So obviously sum of the triangle is 180 degree. So that should be 90 degree. Now it is 90 degree. So it should be what? As I already described, it is hypotenuse. Let's say this is base and let's say this is perpendicular. Okay. So we need to find out the value of P and P. So in any triangle, let's say tan theta, or first of all, I think Pandit Badri Prasad on her bole. So let me start from the beginning. As we know the values of hypotenuse, and we want the both values of perpendicular and both base also. So first of all, let's start with sine 60. Why sine 60? I just started with 60 degree, so I took this value as a base. So this is sine 60 is equals to perpendicular hypotenuse. What is sine 60 degree? Is root 3 by 2. Perpendicular, this value is not given to us. And what is the value of hypotenuse? It is 500. So values of perpendicular is going to be 250 root 3. Okay. By using cos theta, we can find out the value of base. So cos 60 degree is equals to base is what? Base is known to us. Hypotenuse is 500. What is cos 60? It is half is equals to base upon 500. So this is 250. So your base is going to be 250. Okay. So these are the values, as base is 250 and perpendicular is what? 250 root 3. So I think now the problem is so easy. Let's find out the value of time from A to C. So time is equals to distance upon speed. So time is equals to distance upon speed. Distance of B to C is what? 250, while speed is 50 km/h. So time taken is going to be 5 hours. So B leaves at 8 o'clock. It is going to reach C at 1 p.m. So at what time A should reach C? So because B reached at C at 1 o'clock, तो A को 15 मिनट पहले पहुंचना था, तो A को कितने बजे पहुंचना चाहिए? 12:45 पर उसको यहाँ से पहुंच जाना चाहिए. ओके.
12:45 पे यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, तो ए को कितने बजे यहाँ से निकलना चाहिए, तो उसका टाइम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस आपको पता है, आपको स्पीड पता है, तो हम टाइम कैसे कैलकुलेट करें? टाइम कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो टाइम डिस्टेंस इज व्हाट 250 रूट 3 एंड स्पीड इज व्हाट 70. जीरो से जीरो काट दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स ट्रिकी हो जाएगा. 25 into root 3 is divided by 7. Can I say that 25 is 100 upon 4 into root 3 is 1.732 into 1 by 4. 4 as it is, यहाँ से इसको कोशिश कीजिए कि आप इसको मैक्सिमम काट पाए. So this is 4 4s are 16, 4 3s are 12, and this is 4 3s are 12. 0.433 multiplied by 100 is 43.3 divided by 4. So again 4 tens are 40. This is what 3 is there. So this is 10.8 and multiplied by. So let's take this is around 10.8. So at what time he should leave actually? So that is 10 hours. 100 by 4, 1.732. Oh, sorry. This is what? This is 7 actually, not 4. So let me correct this. So this is what? 7. So 43.3 divided by 7 is what? 7 6 are 12, 42. Again 7 ones are 7, then what? 6 is left, 7 8s are 56. So that is important actually. 6.18 means 6 hours plus 0.18 hours multiplied by 60 is going to give you exact minutes. Okay, so 6 hours. 0.18 into 60 is 1.8 into 6, 6 8s are 48, 6 ones are 6. So that is 10.8. So what is the amount, what is the minute actually? So it is 6 hours plus around 11 minutes is the time taken. जो A से C पे पहुंचने का टाइम है वो कितना है? 6 hours and 11 minutes. तो अगर 12:45 पे इसको यहाँ पहुंचना है तो 6 hours 11 minutes अगर पीछे आना चाहे तो कितना टाइम पे इसको निकलना चाहिए? करीब करीब 6:30 पे इसको निकल जाना चाहिए ताकि ये ए से सी पे जितने टाइम पे पहुंचेगा, तो 6:33 पे अगर ये निकलता है करीब, तो ये सी पे 15 मिनट्स पहले पहुंच जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ बी. ओके, सो दीज आर द बिट टफ प्रॉब्लम्स, बट आई थिंक कि इसमें टिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व होता है, तो इसीलिए मैं इस प्रॉब्लम को लिया हूँ ताकि आप टिग्नोमेट्री भी साथ साथ सीख पाए. स्पीड डिस्टेंस टाइम का अकेला क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, फिर वो आएगा तो मिक्स होके किसी और कॉन्सेप्ट के साथ ही आता है. ओके, so that is the problem. Okay, let's take another one. This is another important problem. A train approaches a tunnel AB. So this is what you can say AB, and this is tunnel. Inside the tunnel, a cat located at the point 3 by 8 of the distance of AB. So let me do it further. Measure from the distance A, and the train whistles. So the cat runs. If the cat moves to the entrance of the tunnel A, then the train catches the cat exactly at the entrance. So that is the cat. Let's say speed of cat is C, speed of train is T, and when a whistle by train, जब ट्रेन अपना सिटी बजाता है, तो वो जो ट्रेन है वो अगर मैं सपोज कर लूँ कि वो x डिस्टेंस पे है एंट्रेंस से, सो एंट्रेंस से अगर x डिस्टेंस पे है तो वो ट्रेन जो है वो उसके एंट्रेंस की तरफ दौड़ती है, जबकि जो कैट है वो भी इसके एंट्रेंस की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर देती है. ओके, और वो उसको वहाँ पे कैच कर लेती है. अगर ऐसा है और अगर वो उसको कैच कर लेती है और ये 3/8 ऑफ द डिस्टेंस है, तो क्योंकि 8 का फैक्टर है तो मैं जूम कर लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो ए बी है वो टोटल 8 किलोमीटर है, और अगर ये 8 किलोमीटर है और ये 3/8 पार्ट है तो यहाँ से यहाँ तक का इसको 3 एज्यूम कर ले और इसको 5 एज्यूम कर लेते हैं. ये ऐसा है इसलिए है क्योंकि यहाँ पे रेशो पूछा हुआ है, तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे रेशो गिवन है, रेशो ही पूछा हुआ है, तो आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, बट मेक श्योर कि वो प्रॉपर होना चाहिए. 3/8 होना चाहिए, तो ये 3 पार्ट है और ये 5 पार्ट है और आपने इसको 8 किलोमीटर अज्यूम कर लिया. तो जब कैट यहाँ से यहाँ दौड़ना स्टार्ट करती है तो ट्रेन इधर से यहाँ स्टार्ट करती है. अज्यूम कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक एंट्रेंस से लेके ट्रेन की जो डिस्टेंस थी वो x थी, तो अगर ये सेम टाइम पे मीट करेगी तो ट्रेन x डिस्टेंस चलती है विद द स्पीड ऑफ t.
जबकि कैट जो है वो 3 किलोमीटर चलती है विद द स्पीड ऑफ सी। क्वेश्चन बहुत क्लियर है कि ट्रेन और कैट का अगर रेशो आपसे पूछा है तो आपको टी अपॉन सी का वैल्यू पूछा हुआ है, तो वो अभी लिख देते हैं कि एक्स अपॉन 3। एक्स अपॉन आपने 3 लिख दिया है तो आपको एक्स का वैल्यू चाहिए ताकि आप इजीली आंसर निकाल पाए। ऑब्वियसली फिर उसको एक बार और बोलना पड़ेगा। उसने कहा कि अगर द कैट मूव्स टू द एंड एग्जैक्टली एट द एंट्रेंस द कैट मूव्स टू द एग्जिट बी, और अगर ये एग्जिट की तरफ दौड़ना स्टार्ट करती तो इसको एग्जैक्टली एग्जिट पे ये इसको कैच कर लेता। एग्जैक्टली अगर एग्जिट पे कैच करता है तो ट्रेन को कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, एक्स यहाँ से, और ये पूरा 8 चलना पड़ेगा इसको यहाँ कैच करने के लिए। तो अगर मैं लिखूँ कि ट्रेन को डिस्टेंस चलना पड़ेगा एक्स अपॉन प्लस 8 डिवाइडेड बाय व्हाट, ट्रेन का स्पीड टी। सेम कैट को कितना चलना पड़ेगा, कैट को तो बस यहाँ से यहाँ तक ही चलना, सो दैट इज ओनली 5 किलोमीटर। सो दिस इज 5 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ, स्पीड कितना है कैट का, ये सी एज इट इज। यहाँ से वापस टी अपॉन सी का वैल्यू निकाल लें, सो दैट इज एक्स प्लस 8 डिवाइड बाई 5। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यहाँ से भी टी बाई सी, यहाँ से भी टी बाई सी। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे दोनों टी बाई सी को इक्वेट कर दूँ ताकि मैं अपना जो मेरा वैल्यू था एक्स का वो निकाल पाऊँ। तो यहाँ से टी बाई सी का वैल्यू पहले वाले इक्वेशन से एक्स बाई 3, और यहाँ से एक्स प्लस 8 डिवाइड बाई 5। So this is 5x equals to 3x plus 24. So that is 2x equals to 24. So x is equals to 12. If x equals to 12, put the value over there. So t by c का value 12 by 3. So the ratio is going to be what? 4:1. So that is going to be our answer. Is what? 4:1. Okay. So let's take another problem. This is one of my favorite problem actually, and it will have some more parts also. So start करते हैं इसको। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज पहले बता दूं आपको कि अगर 3 नंबर्स आप जीपी में लेते हो, 3 नंबर्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सो वो होते हैं ए बाय आर, ए एंड ए आर। तो ये हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पढ़ चुके होंगे या पढ़ लेंगे। सो दैट इज ए बाय आर, ए एंड ए आर। अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टू ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट स्टेशन ए एंड बी। सो यहाँ से ए है और यहाँ से बी है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करती है, ये विद द स्पीड ऑफ ए एंड बी, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो गिवन टू यू इज 100 किलोमीटर। ओके, आगे उसने कहा है कि 100 किलोमीटर नहीं है, शायद 100 मीटर है। सो लेट मी करेक्ट दिस। So that is what, hundred meter. A bird flies. So these are the two train. A bird flies from the faster train towards the slower one, starting at the same time. So let's say this is going to be a faster train and this is going to be a slower train. The velocities of the two trains and the birds are in GP. तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, सो दिस इज ए बाय आर, ए एंड ए आर, एंड द बर्ड बीइंग द फास्टेस्ट, और जो बर्ड है उसका स्पीड फास्टेस्ट है, तो मतलब बर्ड का स्पीड कितना मालूम है, ए आर, क्योंकि ये सबसे फास्टेस्ट इसको मान ले तो ये स्पीड ऑफ बर्ड इज ए आर। ये एक फास्टर ट्रेन सपोज कर लेते हैं और ये एक स्लोअर ट्रेन सपोज कर लेते हैं। दूसरा था बर्ड रीचेज द सेकंड ट्रेन इन 10 सेकंड्स। तो दो ट्रेन एक दूसरे के पास में आ रही है और अगर वो एक दूसरे को 10 सेकंड्स में क्रॉस कर लेती हैं, मीट कर लेती हैं, तो फिर तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाएं। एक दूसरे की तरफ आ रही है तो ए बाय आर प्लस ए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 100 डिवाइड बाय 10, सो ए बाय आर प्लस ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 10। उसने कहा कि द बर्ड रीचेज द सेकंड ट्रेन इन 10 सेकंड एंड देन इमीडिएटली फ्लाइज बैक टुवर्ड्स द फास्टर ट्रेन। लेकिन यहाँ पूछा आपसे यह है कि जो फास्टर ट्रेन से निकला है बर्ड फ्लाइज फ्रॉम द फास्टर ट्रेन, तो फास्टर ट्रेन से निकला है तो बर्ड की स्पीड कितनी होगी, बर्ड का स्पीड होगा ए आर, और स्लोअर ट्रेन की तरफ गया है, सो दैट इज ए बाय आर। तो यहाँ से ए बाय आर प्लस ए आर इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन
time, so that is 100 by 10 is what? 10. The bird reaches the second train 10 सेकेंड, ये हमने कर लिया है. तो फास्टर ट्रेन से निकलता है और स्लोवर ट्रेन की तरफ जाता है. तो bird reaches the second train in 10 seconds and then immediately flies back towards the faster train. तो यहाँ से कुछ अज्यूम कर लेते हैं, बर्ड कुछ पैरट टाइप कुछ अज्यूम करते हैं, यहाँ से फ्लाई करता है और इसको टच करता है और फिर वापस यहाँ पे आ जाता है. वो बात की बात देखते हैं. फिलहाल यहाँ से एक इक्वेशन और जनरेट करने की कोशिश करते हैं. आगे उसने कहा है कि flies back towards the faster train. It continues this till the two train meet after 50 by 3 seconds. तो यहाँ से एक और इक्वेशन जनरेट कर सकते हो आप कि दोनों ट्रेन्स जिनका स्पीड कितना है. I already told you that it is a by r plus a. यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्पीड ऑफ स्लोवर ट्रेन, स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन. डिस्टेंस 100 है, डिवाइड बाय टाइम इज 50 by 3, so 100 डिवाइड बाय 50 into 3, so a by r plus a, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से a by r plus a r का वैल्यू कितना है 10. दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, करने के बहुत सारे तरीके. पहला कुछ शॉर्टकट करने की कोशिश करें तो यहाँ से a कॉमन ले लें, सो दिस इज 1 by r plus r इक्वल्स टू 10, और सेम इस इक्वेशन में भी a कॉमन ले लें, सो 1 by r plus 1 इक्वल्स टू 6. इस वाली इक्वेशन में इस वाली इक्वेशन का डिवाइड लगवा दे अगर, सो a का वैल्यू 1 by r प्लस r इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय a 1 by r प्लस 1 इक्वल्स टू 6. a से a काट दीजिए, सो दिस इज 5, दिस इज व्हाट 3. यहाँ से एक शॉर्टकट के सिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको. r प्लस 1 by r इज इक्वल्स टू 5 और 1 by r प्लस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट 3. ओके, तो r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है. r का वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 इज 2, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. अगर मैं 2 पुट कर दूं तो 2 प्लस 1 by 2 इज व्हाट 2 इज प्लस 1 by 2 इज 5 by 2, और यहाँ से 1 by 2 प्लस 1 इज व्हाट 3 by 2. 2 से 2 काट दीजिए, सो दैट इज व्हाट 5 by 3. तो यही 5 by 3 आपके पास आ रहा है. तो इसका मतलब यहाँ से डायरेक्टली आप कह सकते हो कि r का वैल्यू कितना आ जाएगा 2. तो r का वैल्यू 2 यहाँ इस वाली इक्वेशंस में पुट कर दें, तो किसी भी एक इक्वेशन में अगर पुट कर दें, सो जैसे ही r का वैल्यू आप 2 पुट करोगे इस वाले इक्वेशन में, लेट्स से, सो दैट इज व्हाट a by 2 प्लस a इज इक्वल्स टू 6, so 3a by 2 is equals to 6, so a is going to be 4. a का वैल्यू 4 है, r का वैल्यू कितना था, r का वैल्यू 2 था शायद. तो सारी स्पीड्स निकाल सकते हैं हम यहाँ से. a by r 4 by 2, तो इसका स्पीड कितना आ जाएगा 2. 4 एज इट इज, तो फास्टर ट्रेन का स्पीड कितना आ जाएगा 4, एंड ar 4 to 8, और फास्टेस्ट ट्रेन का या सॉरी बर्ड का स्पीड कितना आ जाएगा, सो दैट इज 8. तो हमारे पास सारी स्पीड्स आ गई 2, 4, 8. तो क्वेश्चंस करते हैं जितने हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं इसमें से. तो let's start with the first question. This is the first question. What is the velocity of the slower train? So what is the velocity of the slower train? So that is what 2 meter per second. What is the velocity of the bird? Bird का velocity कितना था 8, so 8 is another answer. Now let's come to the bit of good question. After how many seconds from where the bird first started flying does the bird again reach the faster train? वापस मैं डायग्राम प्लॉट कर लेता हूँ फटाफट. सो ये 100 मीटर था, यहाँ आपकी स्लोवर ट्रेन थी या फास्टर ट्रेन. लेट्स से यहाँ फास्टर ट्रेन थी विद द स्पीड ऑफ व्हाट 4. यहाँ पे बर्ड था विद द स्पीड ऑफ 8, और यहाँ पे आपकी स्लोवर ट्रेन थी विद द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर. ओके, उसने पूछा है कि इन सेकंड्स में जब वो उसको टच करके स्लोवर ट्रेन को टच करके वापस आ रहा होता है, उसने कहा आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स फ्रॉम वेयर द बर्ड फर्स्ट स्टार्टेड फ्लाइंग डज द बर्ड अगेन रीच द फास्टर ट्रेन. तो वो जब इसको यहाँ से टच करके वापस आ रहा होगा तो वो ट्रेन को वापस कितने टाइम में मिलेगा. तो एक चीज तो फिक्स थी कि जो बर्ड और ये स्लोवर ट्रेन है ये कितने सेकंड में एक दूसरे को मिलता है 10 सेकंड्स के अंदर. तो 10 सेकंड्स के अंदर जब ये यहाँ से फ्लाई कर देता है
तो इन 10 सेकेंड्स में आपका फास्टर ट्रेन में तो कुछ आगे आएगा, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, क्योंकि इसका स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, तो ये 4 मीटर पर आवर है, वट एवर दैट इज। सो ये 40 मीटर्स कवर कर लेगा। सेम स्टैंड्स विद दिस विद द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 20 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा। तो ये वाला 20 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा, ये वाला 40 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा। तो जब बर्ड आफ्टर 10 सेकेंड्स यहाँ पे इसको टच करेगा, तो जैसे ही बर्ड इसको टच करेगा और जब वापस घूमना स्टार्ट करेगा, तो वापस घूमना स्टार्ट करेगा तो होगा क्या, ये ट्रेन ऑलरेडी 40 चल चुकी होगी, ये ट्रेन ऑलरेडी 20 आगे आ चुकी थी। तो अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है बर्ड को वापस इस वाली ट्रेन तक जाने के लिए, तो बर्ड को इस वाली ट्रेन तक जाने के लिए मात्र 60 किलोमीटर ट्रेवल करना है। अगर 60 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 60 ही चलना है, लेकिन स्पीड के साथ क्या होगा, ये इधर आ रहा है विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर और वट एवर द स्पीड, ये 8 मीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा होगा। तो इन दोनों का रिस्पेक्टिव स्पीड कितना होगा, 8 + 4 इज गोइंग टू बी व्हाट, 12। तो 12 होगा, तो इसको 60 किलोमीटर या मीटर चलना है विद द स्पीड ऑफ व्हाट, 5। तो इसको कितना आवर्स लगेंगे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, 5 सेकेंड्स। ओके, नहीं, समथिंग इज रॉन्ग एक्चुअली, 440 as it is, so this is 10 seconds 40, this is 60, sorry, this distance is only 40, so this is what, 40 by 12 is what, it is going to be only 10 by 3 seconds। तो इस वाली ट्रेन को जब ये बर्ड वापस यहाँ से मिलेगा तो कितने सेकंड्स में वापस मिल लेगा, 10 by 3 seconds। बट द प्रॉब्लम इज दैट व्हाट ही आस्क्ड यू, that when he left this bird left this train, after what amount of time he was absent from this 10, so 10 second is the time when he was moving towards the slower train, and this is the time when he was flying back towards the train. So what is the total time actually, so 3 into 10 is 30, 30 plus 10 is going to be 40, so 40 by 3 second is the total amount of time and the bird was absent from the fastest train. Okay, so that is the answer. Let's come to the last part. I think that is a bit easy. What will be the distance traveled by the bird till the two train meet? I think that is easy actually. Distance is equals to speed into time. Speed of a bird is 8, and what is the time taken by train, both the train when they meet each other? So that is given to us as what, 50 by 3. So 8 into 50 by 3 is going to be what, 400 by 3 meter. So that is the distance traveled by both the train.